Hi people, today we are at Noida at our Shweta Gaur makeup studio. Thank you so much Shweta ma'am for taking out your time today. Thank you so much to you also. So today we have set up, so many people have been asked so many questions, the aspiring makeup artists from all over the country. Few are the questions, you have to answer them. And be honest, you have to tell your secrets to everyone. How you have achieved it. Definitely. So starting with the first question, how do I start a career as a makeup artist? This is one question that I think it pops out every time to us also, whether it is Instagram or Google or YouTube. So there are a lot of women out there who are aspiring to become makeup artists, and let me tell you that this is one of the most beautiful career that you can opt for to become a woman entrepreneur. That is like you can start your own journey as a businesswoman. So don't take it in this way कि मैं सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट बनने जा रही हूँ. यहाँ पे आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स. एंड डेफिनेटली एक और क्वेश्चन इसके अंदर ये आ जाता है कि अगर इससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, वो कैसे? वो ऐसे जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, चाहे वो BBA प्रोग्राम हो, MBA प्रोग्राम हो, डॉक्टर, CA, इंजीनियर, एवरीथिंग, चाहे वो पायलट के कोर्सेज होते हैं, डैम एक्सपेंसिव जो आप जानते हैं. And after doing that for such a big number of years, what do they get? 1 or 2 lakh salary package? तो जब हम बात करते हैं कोई मेकअप का कोर्स कर लेता है, उसके बाद एक मेकअप आर्टिस्ट बन जाता है. एक मिनिमम ब्राइडल मेकअप भी अगर आप सोचते हैं तो कितने का स्टार्ट होता होगा? जैसे आपकी सिस्टर ने कराया होगा कभी. Right. Around 20 to 15,000. 15 to 20,000 के बीच में ब्रैकेट होता है. That is from a salon which is not even that recognized. Right. But from a recognized makeup artist, they spend 35 to 40,000. More than that something. मैं क्या कहती हूँ, मिनिमम आपने 20,000 का भी मेकअप किया तो आपने 10 मेकअप कर लिए मंथ में, कितने हो गए? 2 lakhs. Right. Wherein आपके कोई 9 to 5 जॉब नहीं है. आप कितने घंटे के लिए गए? 4 से 5 घंटे के लिए, जिसमें ट्रैवलिंग पार्ट भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ. क्योंकि मेकअप आप कितनी देर कर लोगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा. पूरा रेडी करने में ब्राइड को कितना टाइम लग जाएगा? 2 से 2.5 घंटा, 3 घंटा मैक्सिमम, 2 घंटा आना जाना पकड़ ले हम. तो विद इन 3 hours यू अर्निंग 20,000 rupees एंड 10 brides you do earning 2 lakhs. कौन सी जॉब में 2 lakhs ऐसे मिलते हैं? No, I don't think so. Nowhere you can feel that आप कोई जॉब कर लो, आप कोई फ्रीलांस भी कर लो, तो भी आपको ये अमाउंट नहीं मिल पाती है. और ये तो एक बहुत मिनिमम नंबर मैंने आपको बताया है. इवन हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर डूइंग सो वेल इन द इंडस्ट्री ऑफ मेकअप. दे हैव देयर ओन स्टूडियोज, दे हैव देयर ओन सैलॉन्स. सम पीपल आर डूइंग फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसिंग में ही वो महीने के 2-2, 3-3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं. दिस इज तो आई गेव अ वेरी वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. सो आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स, जो लोग आए थे 1,000 रुपए के फ़ोन पे, और आज टुडे दे आर ट्रैवलिंग इन BMW and Mercedes. So that is why I say this is not a makeup course. This is a life transformation course. जो आप जहाँ हो उससे बहुत ज़्यादा पा सकते हो when it comes to beauty industry. Right. Great, well said. So the second question is, like mostly makeup artists, the aspiring makeup artists are usually asking where they can build their portfolio. You know, makeup academy join कर लेते हैं, but then they don't find a good people around them who can build their portfolio. Right. So what are your suggestions to them? Portfolio is the most important thing for a makeup artist, because how will he or she show their work to the people? Right. कैसे दिखाएंगे वो अपना जो उन्होंने काम किया है या इतना अच्छा मेकअप करते हैं? That can be shown only with the portfolio. So portfolio they can make definitely offer the academies जो आपको portfolio offer कर रही है. दूसरा point ये है, उसके बाद you can work with very renowned photographers of Delhi NCR और Mumbai. You can go in film industry. Initial phases में बहुत सारे लोग फ्री में भी काम करते हैं, पर उस वक्त आपको ये नहीं सोचना कि मैं फ्री में कर रही हूँ तो दिस इज़ नॉट फेचिंग मी. नहीं, ये आपका एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, आपको एक्सपोजर मिल रहा है, जहाँ आपको इतने रिनाउंड फोटोग्राफर्स आपका खुद का एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के देंगे, जिसको आप अपने ब्राइड्स को दिखाओ, अपने क्लाइंट्स को दिखाओ. आपको एडवर्टाइजिंग मीडिया इंडस्ट्री में भी काम मिल सकता है. आपको ऑफ कोर्स ब्राइडल तो है ही है जो मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, वेदर दे वर्क इन फिल्म इंडस्ट्री, दे वर्क इन बॉलीवुड, दे वर्क इन टॉलीवुड, दे वर्क इन बॉलीवुड, बट दे स्टिल डू ब्राइडल बिकॉज दिस इज अ बिगेस्ट पार्ट फॉर द मेकअप आर्टिस्ट टू अर्न मनी. आपका जो पोर्टफोलियो है वो इसी तरीके से बन सकता है. वर्क विद गुड रिनाउंड फोटोग्राफर्स, दे विल नॉट से नो टू यू इफ योर वर्क इज गुड. हर बंदा चाहता है एक मेकअप आर्टिस्ट का पहले काम देखना. और हम जिस तरीके से बच्चों को ट्रेन करते हैं, आई कैन एश्योर यू विद इन 2 months यू बिकम सच अ ग्रेट मेकअप आर्टिस्ट दैट मेरे काम में
या फिर इंडिया के किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के काम में और हमारे स्टूडेंट के काम में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता। डिफरेंस स्पीड का हो सकता है, पर वर्क वो ऐसा होता है कि बच्चा पूरी जान डाल देता है। जिस तरीके से हम उन्हें ट्रेन करते हैं वो उस लेवल का पैरामीटर होता है दैट दे कैन बिकम अ फुल फ्लेजेड मेकअप आर्टिस्ट। So usually as you know कि that from 2022 to 2024 makeup industry काफ़ी boom हुई है and there are a lot of people who are like eager to and passionate for a makeup artist. तो mostly makeup artists जो अभी नए हैं start किया उन्होंने they have a common questions कि how they can stand out in a competitive market of a makeup industry. कॉम्पिटिटिव मार्केट हमेशा से थी। कोई अगर ये बोलता है कि 10 साल पहले कंपटीशन नहीं था तो 10 साल पहले भी कंपटीशन था, पर कंपटीशन हर लेवल पे चेंजेस होते गए हैं। मार्केट में अगर कंपटीशन बढ़ा है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ गई है। पहले एक घर में 4 लोग मेकअप कराते थे, आज एक घर में 40 लोग मेकअप कराते हैं। पहले एक घर में अर्निंग मेंबर एक होता था, आज घर में अर्निंग मेंबर अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग, हस्बैंड वाइफ एंड उनके किड्स दोनों अर्न कर रहे हैं। Now the income also have increased. So for anybody to get makeup done is not difficult. तो अगर डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, ठीक है ना। और सप्लाई क्या है, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि लोग बोलते हैं कंपटीशन, देयर इज नो कंपटीशन। आप अपना अच्छा काम करते हो, अच्छे से जानते हो, आप उसे अच्छे से मार्केट कर रहे हो, आप अच्छे लोगों के साथ वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली वर्क आपके लिए है। पर अगर आप कोर्स करके घर पे बैठ जाओगे और सोचोगे मुझे घर से कोई आके निकालेगा, तो वो कोई नहीं है। Right, well said. So moving to our next question. ये भी क्वेश्चन यूजली कॉमनली पूछा जाता है काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट के बाद। इवन आवर स्टूडेंट्स इवन आस्क व्हाट आर द बेस्ट वेज टू नेटवर्क एंड फाइंड क्लाइंट्स। लाइक हमारी अकेडमी तो वी हैव टेक सेशंस एंड बाहर से लोग आते हैं टू टीच एंड ट्रेन देम हाउ दे कैन डू इट। So like people who are like not part of the Shweta Gaur Academy, what suggestion you will do that? See, to find clients, the best way that I always tell, even to my students and to all the makeup artists who are listening to me, it is always better go for social media, क्योंकि social media आजकल कहते हैं ना डिजिटल हो रहा है इंडिया, which is very right. कोई पहले ज़माने में लोग पैम्फलेटिंग करते थे, ऑफलाइन मार्केटिंग को बहुत बड़ा एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म माना जाता था, पर अब वो नहीं है। अब डिजिटल हो रहा है इंडिया, तो डिजिटल के साथ सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फॉर द मेकअप आर्टिस्ट इज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम करते हैं, बट यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा माध्यम है आपको वर्ल्ड ओवर रिकॉग्निशन देने के लिए। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप डेफिनेटली अपना इंस्टाग्राम पेज बनाएं और बहुत क्रिएटिव मेकअप्स, क्रिएटिव लुक्स करें जो आपका टेस्ट है। ऐसा नहीं है आपको किसी को कॉपी करना है, पर जो आपको पसंद है, जो आप दिल से करते हो, अगर वो चीज़ आप अपने पेज पे लेके आओगे, वेदर इट इज फैशन मेकअप, फैंटेसी, ब्राइडल में भी ऑप्शंस हैं। आप कंटेम्प्रेरी करना चाहते हो, अरेबिक मेकअप करना चाहते हो, आप न्यूड मेकअप करना चाहते हो। हर एक मेकअप आर्टिस्ट का अपना अपना स्टाइल होता है, जो इनर वॉइस होती है वो उसको फॉलो करता है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है, आप उसमें अपने वीडियोस अपलोड करिए, गूगल में अपनी एडवर्टाइजमेंट्स रन करिए, डेफिनेटली आपको वर्क मिलेगा, बिकॉज ये ही एक बड़े स्ट्रॉन्ग माध्यम है। वेडिंग प्लानर्स हैं, आप उनके साथ वर्क कर सकते हो। दिस इज अ सो गुड माध्यम जब हम बात करते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग करने का, वेयर यू विल गेट द रियल बिजनेस। इंस्टाग्राम तो एक तरीका है वो जो आपको प्रचार करता है, लोग जानते हैं कि आप भी एक आर्टिस्ट हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट रियल बिजनेस, ऑफ कोर्स एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है जहाँ वेडिंग प्लानर्स, फोटोग्राफर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इनके साथ जब आप टाई अप करते हैं तो आपका इकोसिस्टम बनता है। डिजाइनर्स के साथ आप उनको काम देते हैं, वो आपको काम देते हैं। एंड आई गेस मोस्ट ऑफ ऑल, अगर आपका काम अच्छा है तो यू आल्सो गेट्स रेफरल्स आल्सो। डेफिनेटली आप सोचते हैं अगर आपने 10 ब्राइड करी तो आपका प्रचार 10 लाख लोगों में हो गया, राइट। क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत बड़ा जरिया है। चाहे कोई कितना भी बिजनेस कर ले, पर वर्ड ऑफ माउथ, अगर आप लोग अमेजोन के ओनर को भी फॉलो करते हो तो वो भी एक यही चीज़ कहते हैं, जो कस्टमर आपके पास आ रहे, ट्रीट हिम एज गॉड एंड लेट हिम गो विद हैप्पीनेस, एंड वो ही आपकी हैप्पीनेस बहुत सारी जगह स्प्रेड कर देगा। राइट। देयर इज अनदर क्वेश्चन, लाइक जो ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री हैं, दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली फॉर दोज जो ऑलरेडी फ्रीलांस कर रहे हैं एंड ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो दे हैव दिस क्वेश्चन कि हाउ डू आई बैलेंस क्रिएटिविटी विद क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस, कि आई मीन देयर इनर वॉइस क्रिएटिविटी भी रहे एंड देन उनका क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन भी रहे। सी, पहले तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, अपने क्लाइंट्स की पहले बात सुने, बिकॉज हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो पर क्लाइंट वो चीज़ नहीं कैरी करना चाहता है। बहुत सारे लोग अपने ऊपर न्यूड मेकअप चाहते हैं, वेदर इट इज़ देयर ब्राइडल मेकअप ऑल्सो। और आज की डेट में जो ट्रेंड सबसे ज़्यादा चल रहा है वो चल रहा है, लोग
कोई भी पुता हुआ मेकअप नहीं चाहते, दे वांट कि उनके नेचुरल फीचर्स को ही एनहांस करके एक मेकअप आर्टिस्ट उनको जितनी वो सुंदर है उसमें 20% एडिशन और कर दे, पर उसे ऐसा ना कर दे कि बिफोर एंड आफ्टर इज लाइक ए ह्यूज डिफरेंस। आजकल इंस्टाग्राम पे यस। तो इसीलिए बेटर है आप अपने कस्टमर की सुने। अगर वो आपको ये बोलते हैं कि नहीं मुझे न्यूड मेकअप चाहिए, डेफिनेटली दैट इज हर टेस्ट एंड दैट इज व्हाट शी कैन कैरी, so give her that. So well said. Moving to the next question. This question is even asked by many people. This question is like ki, what's the most rewarding part of being a makeup artist? As everyone know your journey, recently we have released a video you talking about your life journey and many people have appreciated it. So from that people are like asking ki, what's the most rewarding part of being a makeup artist? You can clearly tell us. The most rewarding part for a makeup artist is the blessed money that they get for creating somebody's big day and giving her the most happiness day जो एक लड़की का होता है, या even for a man. Right. They celebrate their wedding day is considered to be the big day. हम कभी नहीं बोलते oh my god मेरे पास डॉक्टर की डिग्री आ गई, it is a big day. Oh my god I am a CEO of this company. We never even celebrate those days. थोड़ा बहुत हो जाता है वहीं सेलिब्रेट कॉर्पोरेट में हो गए विद द फैमिली और फ्रेंड्स और दोस्त कलीग्स एंड ऑल, पर जब हम बात करते हैं बिग डे तो व्हाई वी से इट इज अ वेडिंग डे। और जब आप किसी का वेडिंग डे इतना सुंदर बना रहे हो, एक लड़की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है उसका शादी का दिन, और सबसे डिफिकल्ट होता है उसके लिए वो दिन अपना मेकअप आर्टिस्ट सर्च करना। Right. ड्रेसेस वो कर भी लेती है, पर मेकअप आर्टिस्ट को खोजने में बहुत टाइम लगाती है। उसके बाद जब वो मेकअप आर्टिस्ट उसको मिलता है, वो उसे सुंदर बनाता है, उसके पूरे ट्रूजो पहना के पूरा ड्रेप करके, तो उसकी जब मम्मी सबसे पहले उसकी देखती है रेडी होने के बाद, तो उनके आंखों से ब्लेसिंग्स निकलती है। Right. दैट मनी कम्स विद ब्लेसिंग्स, और जब वो ब्लेसिंग्स होके आपके घर पे आता है वो पैसा, तो कोई भी पैसा जो ब्लेस्ड होके आता है वो आपका घर में बरकत लाता है। Obviously. ये हमारे घर वाले बड़े बूढ़े मानते हैं और ये हम भी मानते हैं Right. विद स्पैन ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा ब्लेस्ड प्रोफेशन है, whether it is for the man, whether it is, क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं lot of men are also coming in this profession and it is a very very blessed profession। जो मुझे फील होता है कि आप किसी का बड़ा दिन और भी ज्यादा सुंदर बना रहे हो, उनके घर में और ज्यादा खुशियां आ रही हैं। Right. जब वो अपनी लड़की को दुल्हन बनते हुए देखते हैं, कोई भी फादर अपनी बेटी को देखता है दुल्हन बने हुए उस जोड़े में, तो वो उनके आंखों में एक अलग सी नमी होती है, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे की जर्नी गोद से लेकर बड़े हुए पलने तक देखी होती है। right. और फाइनली उन्हें पता होता है कि आज उनकी डॉटर पराई हो रही है, आज उनकी डॉटर दूसरे घर जा रही है। दैट लॉट ऑफ डिफरेंस हैज कम। तो उस दिन जब वो अपनी बेटी को इतना सुंदर लगे हुए देखते हैं ना, तो उनके दिल से ना दुआएं निकलती। Even later when the seniors made pictures, just remember the part. तो मेकअप आर्टिस्ट कि यार इसने मेरा मेकअप किया था। Right. तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में, बहुत ब्लेस्ड प्रोफेशन में हैं, और डेफिनेटली इसकी सीढ़ियाँ ऊपर ही ऊपर जाती हैं। मैंने देखा है लोगों के, मैंने सेमिनार्स दिए हैं पूरे पैन इंडिया में, और जब मैं लोगों से बात करती हूँ जो सैलून ओनर्स हैं, जो ब्यूटिशियंस हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो यही बोलते हैं कि हमारी इनकम इज मोर देन अ हॉस्पिटल ऑल्सो। वाई? बिकॉज सबसे पहले इवन बिफोर गोइंग टू डॉक्टर, एक मेकअप आर्टिस्ट के पास ही क्लाइंट आता है कि मेरे फेस पे ये इशू हो गया, Right. मैं क्या करूं? Right. और जब वो बोलती है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, तभी वो जाते हैं। बस सबसे पहले हमारा हेयर फॉल भी होता है ना, तो हम डॉक्टर के पास सीधा नहीं पहुंच जाते, वी गो टू अ सैलून Right. एंड वी आस्क द हेयर ड्रेसर, मेरे बाल थोड़े थिन हो रहे, क्या बताओगे? जब वो ट्रीटमेंट से हमें इफेक्टिवनेस नहीं लगती है, देन ओनली वी लैंड अप। और जनरली इफेक्टिव हो ही जाते हैं जब हम सैलून में अपने ट्रीटमेंट्स कराते हैं, तो हमारी चीजें ठीक हो ही जाती हैं Right. Right. Because before reaching the doctor। because makeup artists do have experience with like डेफिनेटली Right. एंड हेयर स्टाइलिस्ट। तो यही चीज़ है, जब ब्यूटी इंडस्ट्री हमेशा इंसान के लिए फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद वो एक एक्सट्रीम स्टेप लेता है डॉक्टर के पास जाने के। जब उसका वहीं सब ठीक हो जाएगा तो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? well said, well said. So here's another question. So as you know कि makeup industry में काफ़ी टाइम से काफ़ी there are changes. पहले there is like पहले normal लोग मेकअप करते थे, then products के अंदर changes आ गए हैं, then now there is a PMU, now there people are doing cosmetology, and then people are going towards skin and dermatology. People are asking कि how to keep up with the makeup trends and techniques. सी चेंजेस तो आते जाएंगे, बिकॉज डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स चेंजिंग डे बाय डे। अब अगर हम बात करें, अभी हमने भी अकेडमी में कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं परमानेंट मेकअप, कॉस्मेटोलॉजी के, एंड कॉस्मेटोलॉजी हैज ऑल्सो गॉन टू एडवांस लेवल, क्योंकि नाउ डेज पीपल वांट परमानेंट सॉल्यूशंस। लोगों की लाइफ इतनी
डे बाय डे बिजी हो चुकी है कि लोगों के पास समय नहीं है, तो लोग चाहते हैं अब हमें परमानेंट फिक्स सोल्यूशन चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्किन, व्हेन इट कम्स टू हेयर, व्हेन इट कम्स टू आईब्रो। सो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया आजकल माइक्रो ब्लेडिंग, नैनो ब्लेडिंग, तो लोग ये चीजें बहुत ज्यादा कराते हैं। इवन यू वुड हैव सीन, मैंने भी अपने आईब्रोज पे करा रखा है। जिन लोगों की आईब्रोज कम होती है, थिनिंग होती है, वो लोग थोड़ी ब्रॉड आईब्रोज आज की डेट में चाहते हैं, बिकॉज दिस इज द ट्रेंड्स दीज डेज। एक टाइम था, आई एम टॉकिंग अबाउट 20-25 years बैक, व्हेन माय मदर वाज यंग, तो उस टाइम पे लोगों को एक थिन आईब्रोज का कॉन्सेप्ट था राउंड का, तो उस टाइम पे लोगों की हैवी आईब्रोज भी होती थी, उसे भी थिन करा लेते। और अब लोगों का कॉन्सेप्ट है ब्रॉड आईब्रोज का, तो जिनकी नहीं है वो ब्रॉड कराएंगे। ठीक है, मॉडलिंग एजेंसीज में भी अब लोग यही चाहते हैं कि ब्रॉड थिक आईब्रोज हो, चाहे वो वेस्ट से लोग इंस्पायर्ड हो, चाहे वो ईस्ट से लोग इंस्पायर्ड हो, पर ट्रेंड्स बदलेंगे क्योंकि एवरी डे पीपल वांट एनीथिंग न्यू दैट इज कमिंग। पहले पतले होठों का फैशन था, आज ब्रॉड लिप्स का फैशन है, तो फिलर भी आ गए, लोग फिलर कराना चाहते हैं, अपने लिप्स प्लम्पी कराना चाहते हैं। तो ये ट्रेंड्स बदलते रहेंगे और जब चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी तो मेकअप आर्टिस्ट को अपने आप को हर सेकंड अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो आप मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाओगे। तो कीप ऑन अपडेटिंग विद लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स। अगर हम बात करते हैं स्किन के लिए, पहले लोग के नेचुरली पिंक होते थे चीक्स, अब अगर अभी हम हिमाचल साइड जाएं तो लोगों के पिंक रहते हैं, लोगों के है, बट बिकॉज अब हम बात करें मेट्रोज में, देयर इज लॉट ऑफ पॉल्यूशन, लॉट ऑफ पॉपुलेशन, लॉट ऑफ जो हम लोग खाना भी खा रहे वो भी नेचुरल, वर्क स्ट्रेस, तो उस कारण से पैदा तो हम गाल पिंक के साथ होते हैं पर बाद में वो रहते नहीं है। तो बेटर है फिर देन यू हैव चीक टिंट्स। अब चीक टिंट्स आ गए, लोग परमानेंट चीक टिंट करा लेते हैं, परमानेंट फाउंडेशन फेस पे लगवा लेते हैं, बीबी ग्लो जो चलता है, तो उससे क्या होगा, स्किन का टोन ही चेंज हो जाता है, आपको फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है एवरीडे। So if I'm not wrong, will it be right to say like there is also trends changes in makeup industry, also makeup standards और beauty standards भी काफी change डेफिनेटली पूरा चेंज हो चुका है, एंटायरली चेंज हो चुका है। आप देखो पहले कॉन्टूरिंग अलग लेवल पे करते थे, अब कॉन्टूरिंग अलग लेवल पे होने लग गई है। हम आई मेकअप करते थे, पहले बहुत ज्यादा ब्रॉड करते थे, अब वो आई मेकअप अंदर ही स्ट्रैंड्स में होने लग गया है। लैशेस पहले लाइट लगती थी, अब लैशेस हैवी लगने लग गई हैं, जो आईज को एक अलग कॉन्टूर शेप भी देती है। आईब्रोज के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, नाउ पीपल वांट ब्रॉड एंड बुशी आईब्रोज। ब्रॉड बुशी का तो कभी इंडिया में ट्रेंड ही नहीं था, और आज जब वो थे लोगों के पास, उन्होंने वो हटवा दिए, अब वो नहीं आ रहे तो उसे बनवा रहे हैं। तो ये ट्रेंड्स तो बदलते रहेंगे। लिप्स थे, लिप्स लोगों के ब्रॉड है तो उसे और ज्यादा ब्रॉड करा रहे हैं, तो ये तो चेंजेस चलते रहेंगे जब तक हम एज ए ह्यूमन बीइंग अलाइव है। अब गाड़ियों का ही देख लो, पहले गाड़ियां कहाँ ऑटोमेटिक होती थी, अब ऑटोमेटिक है। तो एवरी इंडस्ट्री हैज टू रेवोल्यूशनाइज, जब तक वो रेवोल्यूशनाइज नहीं होगी तब तक न्यू बायर्स अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। वेल सेड श्वेता, लाइक आपने भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करे, बट जो मोस्ट कॉमन डाउट यूजली स्टूडेंट्स को रहता है जो अभी नए नए आए हैं, दे आर एस्पिरेंट्स एंड फैमिली की तरफ से इतना उनको सपोर्ट नहीं है, बट स्टिल दे आर लाइक पैशनेट एंड अपनी फैमिली को कन्विंस करते हैं, और तो उनके लिए सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन होता है कि देर आर लाइक लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट नाउ, like even our students from our academy have like their own academy. Is there any kind of a parameter, or is there a kind of a like a cheat code ki what sort of things need to take in mind while joining a makeup academy? डेफिनेटली ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे अपनी फैमिली से अगेंस्ट जाके भी ये कोर्सेज करते हैं, क्योंकि आज भी नॉट मच ऑफ द फैमिलीज आर सपोर्टिंग, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है, वो वही ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं जो इतने सालों से हो रहा है। BBA करा लो, टीचर कोर्स करा लो, MBA प्रोग्राम करा लो, ये कराने में कुछ बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि ये ना कराया जाए, बट जब बात आती है साथ साथ एक मेकअप कोर्स भी कराने की, जब बच्चा कॉलेज में एनरोल होता है, तो अगर वो टॉप नॉच SRCC में चला गया तो पेरेंट्स सिर्फ सोचेंगे भाई MBA कराएंगे और उसकी लाइफ सेट हो गई, और अगर उसके 60 to 70% आ गए तो एवरेज कॉलेज में करा के उसे 4-5 लैंग्वेज कोर्स करा देंगे कि भाई एम्बेसी में लग जाएगी जॉब, भाई मेरा बच्चा वहाँ नहीं जा पाएगा तो यहाँ, मतलब खुद ही एज्यूम कर लिया जाता है कहीं टीचर बन जाएगा, हाँ कहीं टीचर बन जाएगा, तो उसके लिए माँ बाप खुद ही अपनी तरफ से सोच लेते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जहाँ आप इतने सारे कोर्सेज करा रहे हैं, मैं नहीं कह रही कि आप उन्हें वो सारे कोर्सेज ना कराएं, पर एक ये वाला कोर्स को भी एक मौका मिलना चाहिए जब हम बात करते हैं एक मेकअप आर्टिस्ट कोर्स को। क्यों? क्योंकि जेन्युइनली आपको एक
एक बिजनेस का रास्ता दिखा रहा है। मैं नहीं कहती कि मेरे स्टूडेंट्स को जॉब करनी चाहिए, मैं तो आज भी इस फेवर में नहीं हूँ। मैंने खुद जॉब नहीं करी एज अ मेकअप आर्टिस्ट। डेफिनेटली मैंने एयरलाइन में जॉब करी थी आफ्टर 21 ईयर ओल्ड, क्योंकि शायद तब तक मुझे भी किसी ने गाइड नहीं किया था इस इंडस्ट्री के बारे में। तो वहां से जब मैं निकली 7-8 साल जब मैंने जेट एयरवेज में जॉब किया और मुझे पता चला था कि ये एक बहुत वाइड स्कोप इंडस्ट्री है, तो मैंने जब कोर्स किया तो मैंने उसके बाद जॉब नहीं करी, मैंने सीधा अपना बिजनेस शुरू किया, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट तो मैं बन चुकी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, या तो आप जॉब में जाके जॉब के कंफर्ट जोन में चले जाओ, और जॉब के कंफर्ट जोन में तो आप लाइफ टाइम जॉब ही करते रह जाओगे, आप अपना कभी खोल ही नहीं पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो सेकंड स्टेप होता है कि इंसान भले ही छोटा सेटअप खोल ले पर छोटे से बड़ा बन जाएगा। पर अगर आप यही एम करोगे कि नहीं मेरे को डर लग रहा है कल को मैं नहीं कर पाई, वो डर के कारण हमारे इंडिया में बहुत लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको ये बात डेफिनेटली बताना चाहूंगी, जब आप सोच रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट बनने को, तो मेरे हिसाब से हर मेरे स्टूडेंट का खुद का सेटअप होना ही होना चाहिए। अमेजिंग। और भले ही वो एक छोटे से शुरुआत करें, मैं कहती हूँ अपने घर के एक कमरे से शुरुआत कर लो। बट मैंने भी अपने घर के अंदर एक ड्राइंग रूम का सेटअप हटा के वहीं से आपका जो पहला आपका मेकअप स्टूडियो था, yes, मैंने वहां से शुरू किया था। एंड इट रियली बिकेम अ बिंगो। एक साल में इट गेव मी सो मच ऑफ मनी दैट मैंने एक 40,000 स्क्वायर फीट का जगह ले ली थी। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि बिजनेस जो होता है, अगर आपने ठान ली है कि मैं बिजनेस करूंगी, मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर बनूंगी, तो डेफिनेटली आप इस मेकअप आर्टिस्ट से एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बन सकती है, अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मैं कहती हूँ आप खोलिए भी मत, एक फ्रीलांसर ही बन जाइए, आप उससे भी बहुत कुछ एक बेंचमार्क बना सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी जिन्होंने फ्रीलांसिंग से अपनी जर्नी शुरू करी और आप बड़ी बड़ी जगहों में अपने स्टूडियोज डाल दिए। बहुत बड़े बड़े नाम है, लोग जानते होंगे। तो इसलिए मेरा यही सजेशन है कि जब आप कोर्स चूज कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए कि आपको एकेडमी से क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहली चीज़ है आपके लिए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है जिससे एक मेकअप आर्टिस्ट क्या दिखाएगा जिससे कि उसे काम मिले। दूसरा पॉइंट ये है रिकॉग्निशन ऑफ द एकेडमी। क्या वो किसी गवर्नमेंट बॉडी से कहीं से रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे आउट ऑफ इंडिया भी फ्लाई करते हैं और वीजा के टाइम पे वो लोग क्या देखते हैं, फ्रॉम विच बॉडी इज इट रिकॉग्नाइज्ड, एनी गवर्नमेंट बॉडी, तो वो इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज, किस मेकअप आर्टिस्ट की वो एकेडमी है, क्या उनका काम है, जो आपको दिखेगा तो आप भी जानेंगे कि मैं ऐसा वर्क सीखूं। And from how long they have been in the industry? They have been in the industry। और चौथा पॉइंट ये हो जाता है कि ये माइंड में मत लेके रखिए कि मैं उसी मेकअप आर्टिस्ट से ही जाके सीख लूं। इज इट अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट और नॉट? क्योंकि अगर हम बात करें, श्वेता गौर SS बॉलीवुड मेकअप स्कूल इज अ प्रॉपर मेकअप स्कूल, जहां बच्चे को जीरो से ग्राइंड करके उसे मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ एक कॉन्फिडेंट इंसान भी बना रहे हैं। इट्स अ फिनिशिंग स्कूल। सो यहाँ पे आपको हर चीज सिखाई जाती है व्हेन इट कम्स टू मेकअप, फैशन, फैंटेसी, एवरीथिंग। और मैं तो कहती हूँ जब बच्चा आता है ना, उस टाइम पे एनरोल करने में ऑलवेज टेल, आज उसके पेरेंट्स को बोलते हैं उसका बिफोर क्लिक कर ले। और जब वो वहां से सीख लेता है, जब वो आफ्टर अपने बच्चे को देखते हैं, तो देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस विद इन द कॉन्फिडेंस, विद द आउटर अपीयरेंस, विद हर थिंग्स टू डू मेकअप। बहुत कुछ चेंजेस वो फील करते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि इट इज नॉट अ मेकअप कोर्स, मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, इट इज अ प्रॉपर फिनिशिंग स्कूल दैट वी आर गिविंग। अगर आपने हमारे ऑम्बियंस देखे हो, दे वेरी 5 स्टार में। क्या जरूरत है मैं इतने 5 स्टार बनाने का, पूरे इंडिया में किसी ने नहीं बना रखे ऐसे। पर एम्बियंस बहुत कुछ इंसान के जीवन में क्रिएट करता है। जब आप 5 स्टार जाते हैं, आप घर में शायद चौकड़ी मार के चाय पी लें, पर 5 स्टार में तो चौकड़ी मार के चाय, you have a different body language. बॉडी लैंग्वेज बदलती है। तो जो हमारे इंस्टीट्यूट में आता है बच्चा, उसकी बॉडी लैंग्वेज दिनों में, सेकंड्स में चेंज हो जाती है। They got in a high vibration zone. High vibrations, music, everything. आपने देखा होगा कैंडल्स, बुद्धा, flowing water. Why? Just creating a vibe. Yeah. Vibe for everybody. तो वो चीज़ है। प्लस हमारे एसोसिएशन है बॉलीवुड के साथ। तो जब एक स्टूडेंट इतने सारे पैरामीटर्स पे जज कर लेता है एकेडमी को कि मुझे क्या एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मेकअप सीख लिया, आपको ना वो किसी फैशन शो में लेके गए, हमने आईफा में बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी थी, आईफा अवार्ड्स आबू धाबी में। तो स्टूडेंट्स हैव गॉन देयर, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने मेकअप। even in गोवा वी सेंट, गोवा में तो भेजते ही रहते हैं हम रेगुलरली। मिस वर्ल्ड हुआ था, वहाँ पे भी हमने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी।
तो कहने का मतलब ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम एज अकेडमी देते हैं. ऑन टॉप ऑफ इट वी प्रोवाइड प्लेसमेंट्स ऑल्सो, प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आप प्लेसमेंट के चक्कर में मत चलो. अगर आप डेफिनेटली हमारे बच्चों के एग्जाम्स देखोगे तो आप देखोगे दे आर जस्ट वाओ, दे आर जस्ट फ्लैबरगास्टेड, बिकॉज इतना अच्छा मेकअप उन्हें सिखाया जाता है और वो इतने अच्छे से करते हैं उस दिन. तो वो ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं. फिर जॉब में हाथ साफ करने की क्या जरूरत है? मैं कभी नहीं कहती जॉब में जाओ हाथ साफ करो. जॉब में आप जॉब में ही रह जाओगे. निकलो वहाँ से और अपने स्टोर्स ओपन करो, अपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो. जब आप बाहर निकलोगे, कहते हैं ना एक सोल्जर जब पूरा तैयार के माइंडसेट से निकलता है तो वो अपने लिए कोई ना कोई खदान खोज ही लेता है. तो खदान खोजने वाली बात है. आप ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हो. अब आपको मार्केट में निकलना है कि मैं किस तरीके से अपने रास्ते बनाऊं. लाइक अभी आपने एक प्रोग्राम मेरे से डिस्कस किया था बिहाइंड द स्टेज. यू आर अबाउट टू गिव स्कॉलरशिप प्रोग्राम. हाँ, we have started that स्कॉलरशिप प्रोग्राम to the underprivileged people. ओके. हाँ, तो अब हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जहाँ हम अपनी हर अकेडमी में 30 स्टूडेंट्स जो अंडर प्रिविलेज है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोर्सेज, जिनकी फैमिली सिचुएशंस, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हो सकता है आपके ड्राइवर्स हो, मेन्स हो, और बहुत सारे लोग हो जिनके फैमिली सिचुएशन इतनी नहीं है कि जहाँ वो ये कोर्सेज करा सकते हैं. पर यदि आपको पता चलता है इस माध्यम से और आप उनको हमारे यहाँ भेजते हैं, एंड वी आर टीचिंग 30 स्टूडेंट्स एवरी मंथ इन पर अकेडमी ऑफ आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दिस इज वन थिंग दैट वी कैन, वन स्टेप दैट आई थिंक हर एक को करना चाहिए. आई थिंक दिस कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी. एग्जैक्टली. जब आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है, जब आप प्रिविलेज्ड हो, अगर आप थोड़ा सा भी मन से सोचो कुछ चैरिटी करने को, तो आप बहुत कुछ सोसाइटी को दे सकते हो. राइट. यू आर गिविंग देम अ करियर. एग्जैक्टली. अब मैं अपनी मदर की बात करूं तो मेरी मदर बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को हमारे घर में बुला के पढ़ाती भी हैं. आई हैव हर्ड अबाउट. हाँ, मतलब उनकी ये एड है, उनकी हेल्प है, जो उन्हें आता है वो उन बच्चों को पढ़ाती हैं. चाहे ड्राइवर्स के बच्चे हो, चाहे वो पढ़ने के इच्छुक है, पर उनके माँ बाप उन्हें नहीं पढ़ा सकते. स्कूल में तो पढ़ ही रहे, बस स्कूल के अलावा भी हेल्प चाहिए थी, ट्यूशंस वगैरह उनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते. तो मेरी मदर उस चीज को वो चीज करती है. So I will say कि आप इंस्पायर हो गए from your mom. You are just giving back to the community. Exactly. And I really feel मैं क्या हर एक इंसान को अगर वो थोड़ा थोड़ा भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे तो कितने करोड़ों लोगों की हेल्प आके हमारी सोसाइटी खुद ही ऊपर हो जाएगी. Right. कल को वो आगे किसी की हेल्प करेंगे तो it will be और will be charmed that exactly. वो got skills and all. Exactly. Perfect. So at the end मैं बस श्वेता से यही पूछना चाहूँगा, कितने मेकअप आर्टिस्ट हैं moving from their town, from small towns and you know coming to metros, they are, because makeup is attracting them. Just they keep with their mindset, they keep their passion, not just कि हमारी अकेडमी में आ रहे हैं, with anywhere there, because it's a thing they can learn and they can change their career like you do, like you did and like you're doing it for the other students. So उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? See, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आई थिंक हर लेडी में, हर इंसान में एक पैशन होता है, और अगर वो पैशन आप में है और अगर आप अपनी ज़िंदगी सच में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव दैट पैशन एंड ज़ील टू कम फ्रॉम मेट्रो टू मर्सिडीज, देन प्लीज़ डू दिस मेकअप कोर्स. भले ही आप वो कहीं से भी करें, बट बहुत सावधानी से अपने स्टेप्स रखिए और अपनी करियर को बिल्ड करते जाएं. ऊपर वाले को याद रखिए. दिल, कहते हैं ना, अगर इंसान की नीयत अच्छी है तो ऊपर वाला भी उसके साथ होता है. तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपना जज्बा उतना ही स्ट्रॉन्ग रखें, डेफिनेटली ऊपर वाला आपके साथ है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Thank you so much.